Good morning, students. Today we are going to start our next topic of chapter 1 of microeconomics, that is introduction. And today our topic is scarcity, meaning of economic problems, reasons of economic problems. So students, in a previous lecture, we have already studied about what economics is all about and meaning of an economy and the difference between market economy and central planned economy. So today our first topic is scarcity. Scarcity. Okay, so scarcity scarcity refers to refers to the condition of insufficiency of the condition of insufficiency where the human being where the human being human beings are incapable to fulfill their wants. Incapable to fulfill their wants. In sufficient manner. एक्चुअली स्टूडेंट मैंने आपको कल भी लेक्चर में अपने बताया था कि हमारे पास क्या होती है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट आर रिसोर्सेज आर स्क्योर और लिमिटेड. बट रिसोर्सेज आर स्क्योर और लिमिटेड एंड आई हैव अल्टरनेटिव यूजेस. ओके, सो स्कार्सिटी एक तरीके से क्या है कि हर एक चीज में हर एक रिसोर्स जो होता है ना, रिकोर्स जो रिसोर्स होते हैं वो स्केयर होते हैं. दैट्स व्हाई the problem of choice will be arise. ओके, जो चॉइस की प्रॉब्लम होती है वो इसीलिए अराइज होती है क्योंकि रिसोर्सेस क्या है. सो स्कार्सिटी रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ इनसफिशिएंसी. ठीक है, ये स्कार्सिटी क्या है, जो कि इनसफिशिएंसी की कंडीशन को दिखा रही है, where human beings are incapable to fulfill their wants in sufficient manners. क्योंकि ह्यूमन बींग्स के हमने बताया था कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. सो वो अपनी जो अनलिमिटेड वांट्स होती हैं उनको सफिशिएंट मैनर्स में फुलफिल करने में इनकेपेबल होते हैं, सक्षम नहीं होते. ओके, सो स्टूडेंट, in other words, it is a situation of fewer resources in comparison to unlimited human wants. And human wants are unlimited. So we may satisfy some of our wants, but soon new wants arises. क्या होता है कि हम अपनी कुछ जो हमारी वॉन्ट्स होती हैं उनमें कुछ को तो सेटिस्फाई कर लेते हैं, लेकिन जल्दी ही क्या होता है हमारी और नई वॉन्ट्स जो है वो अराइज हो जाती हैं, क्योंकि हमारी जो वॉन्ट्स होती हैं, हमारी जो एक ह्यूमन बीइंग की जो इच्छाएं होती हैं वो कभी भी खत्म नहीं होती, एक के बाद एक अराइज होती है. So it is impossible to produce goods and services so as to satisfy all wants of people. ओके okay? तो ये मतलब कि ये इम्पॉसिबल है कि उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जिससे कि लोगों की जितनी भी सभी वांट्स उनको सेटिस्फाई किया जा सके. सो स्कार्सिटी एक्सप्लेन दिस रिलेशनशिप बिटवीन लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स एंड द प्रॉब्लम देयर इन. क्लियर स्टूडेंट? Yes, listen again. Scarcity explains this relationship between limited resources and unlimited wants and the problem therein. Like in today's world, clean drinking water and quality soil are two most scarce resources on this planet, so which are insufficient
to meet the unlimited human wants. Clear? Now the next topic is meaning of economic problem. Meaning of economic problem. Meaning of economic problem. Yes, meaning of economic problem. So we all know that human wants are unlimited, okay? And we cannot find any single individual, family, or country in the in the whole world who can satisfy all its wants. अब ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है, ठीक है? तो कभी भी हम ऐसे किसी भी एक अकेले किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी इंडिविजुअल को, फैमिली को, या फिर आप ये कहो कि कंट्री को, पूरे वर्ल्ड में कोई कंट्री ऐसी नहीं है जो इन सभी के सभी वांट्स को अकेले सेटिस्फाई कर सके. So it reminds us of the fact that wants are unlimited and means are limited. Okay, so this scarcity of means in relation to wants gives rise to the problem of deciding which wants are to be fulfilled and how much resources are to be allocated among different types of wants. तो ये जो जो ये मीन्स जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो ये स्कार्सिटी है किसके रिलेशन में, हमारी जो वॉन्ट्स हैं अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं उनके रिलेशन में, जो ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इससे किस चीज की प्रॉब्लम अराइज होती है, डिसाइड करने की, चॉइस की प्रॉब्लम अराइज होती है. और डिसाइड करना होता है हमें कि हमारी जो कौन से जो वॉन्ट्स हैं उनको फुलफिल किया जाए और कितने रिसोर्सेज जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉन्ट्स के बीच में, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉन्ट्स हैं उनके बीच में कितने कितने रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए. सो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आती है. सो फॉर दिस वी हैव टू मेक चॉइसेस and it is this necessity of choice which gives birth to the economic problem. Clear? So student, as Professor Eric Roll defines, yes, यहाँ पर एक definition है देखो, as Professor Eric Roll defines, क्या डिफाइन कर रहे हैं वो, कि द इकोनॉमिक प्रॉब्लम is essential is essentially a problem arising from the necessity from the necessity of choice. Choice is choice of the manner in which limited resources in which limited resources with the alternative uses are disposed of are disposed of. So it is the problem of husbandry of resources. Husbandry of resources. Okay. So student, ये जो डेफिनेशन है क्या कह रहे हैं, एज प्रोफेसर एरिक रोल डिफाइन, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एसेंशियली अ प्रॉब्लम. ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये क्यों अराइज होती है, किसकी वजह से, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एसेंशियली अ प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द नेसेसिटी ऑफ चॉइस.
क्योंकि जो हमारे पास जो चॉइस है, जो चुनने की जो जरूरत होती है ना, में नेसेसिटी है हमारे पास, उसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। और वो चॉइस ऑफ द मैनर इन विच लिमिटेड रिसोर्सेज विद द अल्टरनेटिव यूजेस आर डिस्पोज्ड ऑफ। और ये जो एक प्रॉब्लम है, इसको कैसे हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं? जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, उनका यूज करके, सही तरीके से यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। सो इट इज द प्रॉब्लम ऑफ हस्बेंड्री ऑफ रिसोर्सेज। और इन अदर वर्ड्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग द रिसोर्सेज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी क्या है? अगर हम दूसरी तरफ ये कहें तो देखिए, इन द अदर वर्ड्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ is the problem of managing the resources. Managing the resources. Okay, when an economy allocate the limited, when economy when an economy allocate allocates the limited resources in such a way that it is able to produce, it is able to produce maximum goods and services, maximum goods and services to satisfy human wants, to satisfy human wants. Then it is known as, then it is known as economizing of resources. ये आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है बच्चे, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। ओके, सो देखिए स्टूडेंट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग द रिसोर्सेज, के रिसोर्स को कैसे मैनेज किया जाए। व्हेन एन इकोनॉमी एलोकेट्स द लिमिटेड रिसोर्सेज इन सच अ वे, ठीक है, इस तरीके से वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करे कि दैट इट इज एबल टू प्रोड्यूस मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा सके, किस चीज के लिए? टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जो ह्यूमन वांट्स को, मैक्सिमम से मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, देन इट इज नोन एज इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। इसे ही हम क्या कहते हैं? इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। Okay, so in simple words, the problem of choice arising from the use of limited means to the satisfaction of various ends, it is known as economic problem. Now the next topic is reasons of economic problems. Reasons of economic problem. Yes, so it is essential to understand why and how does an economic problem arise. So here are the main causes for the origin of economic problem in a country. So our first is unlimited human wants. Unlimited human wants. Having different priorities. Having different
priorities. So student, wants have two basic features. First is human wants are unlimited. Human wants are unlimited, and recurring. And second is human wants have different priorities. Human wants have different priorities. Okay, so in first, human wants are unlimited and recurring. So student, as we satisfy one want, many more come up. हमने जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई आप अपने को भी लेकर चले तो हम लोग भी जैसे ही हमारी कोई एक इच्छा है वो पूरी हो जाती है तो हम साथ के साथ दूसरी खड़ी हो जाती है कि हमें ये चाहिए वो अगर हमने सेटिस्फाई कर ली उस चीज को वो फुलफिल कर ले तो तीसरी वांट खड़ी हो जाती है सो एज वी सेटिस्फाई वन वांट many more come up. So besides, one cannot satisfy even one particular want for all the times to come. अब जैस मतलब कि अब क्या होता है कि यहाँ पर देखिए आपको कभी भी ना आगे आगे जैसे जैसे आगे टाइम आता रहता है कि ऑल द टाइम जैसे जैसे टाइम आता है तो उस टाइम पर आप ना अपनी एक पर्टिकुलर वांट को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो कई बार ऐसा भी होता है सो एज वी फुलफिल अ पर्टिकुलर वांट एट अ पर्टिकुलर टाइम आफ्टर सम टाइम इट अगेन रिकर भाई आपने एक टाइम पर अपनी किसी पर्टिकुलर वांट को फुलफिल कर लिया तो आगे क्या होगा आगे फिर से वो दोबारा से उस क्या होगा वही वाली वांट जो है दोबारा से खड़ी हो जाती है सो ह्यूमन वांट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग विद द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन नॉलेज साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ सो ह्यूमन वांट्स हमेशा बढ़ती रहती हैं और आजकल तो क्या हुआ कि क्योंकि हम जैसे जैसे एजुकेटेड होते जा रहे हैं नॉलेज आ रही है साइंटिफिक एडवांसमेंट की वजह से और इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से मतलब ये जो ह्यूमन वांट्स हैं वो कभी कम नहीं होती हैं वो इंक्रीज होती चली जाती हैं सो हैंस द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल दीज वांट्स इज नॉट पॉसिबल सो सेकंड इज human wants have different priorities. So all human wants are not equally important. For an individual, some wants are more important than the others. For example, for a student, pen is more important, while for a farmer, it is ploy, which is more important. क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए जहाँ एक तरफ क्या है बुक्स या पेन वगैरह इस तरह की चीजें इंपॉर्टेंट है दूसरी तरफ फार्मर के लिए वही जो पेन है वो उसके लिए प्रायोरिटी नहीं है उसको क्या चाहिए उसको अपने खेत के लिए हल चाहिए तो वो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा सो हेंस एवरी पर्सन कैन अरेंज ऑल हिज वांट्स इन एन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ठीक है प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो लगाता है अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बैंक बनाता है अपने गुड्स के लिए अपनी वांट्स की और इफ ऑल ह्यूमन वांट्स वर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस so it would have become impossible to make choices and then there would have been no economic problem okay मतलब अगर मान लो किस ह्यूमन के लिए सभी के सभी गुड्स जो हैं सभी के सभी जो उसकी वांट्स हैं वो इक्वली इम्पोर्टेंट है तो वहां तो चॉइस की जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो हो ही नहीं सकती मतलब चूज करने की जरूरत ही नहीं है इम्पॉसिबल है चूज करना क्योंकि उसके लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी वहां नहीं होगी लेकिन ऐसा नहीं होता ओके नाउ द सेकंड इज limited resources with alternative uses limited resources with alternative uses so student here first is resources are limited resources are limited
So if our resources are unlimited to satisfy all our wants, so there would have been no economic problem. क्योंकि अगर हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो यानी लिमिट में ना हो तो हम अपनी हर एक वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो इसलिए वहां पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी अराइज नहीं होगी. इफ एवरीथिंग इज अवेलेबल इन अबंडेंस एज एयर एंड सनशाइन, so there would have hardly been any need for economic activities and economics. फिर ना तो हमें किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जरूरत होगी ना ही हमें किसी इकोनॉमिक्स की. बट this is not the reality of life. In the real world, means are limited in relation to wants. So these means are known as economic resources. ये means जो है ये हमारे इन्हें हम क्या बोलते हैं, हमारे economic resources. And because of their limited availability, they attract the price. ओके क्योंकि ये लिमिट में होते हैं ना, जो चीज जिसकी स्कार्सिटी ज्यादा होती है, स्कार्सिटी हो उसके क्या होते हैं, उसके प्राइस होंगे. ठीक है, अगर देखिए आपको वाटर है, अगर आप क्या है वाटर की कोई कमी नहीं है, अनलिमिटेड है, तो आपको फ्री में वाटर मिल जाता है. लेकिन अगर आप बड़े बड़े शहर में जाओ जहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है, वहां पर भी आपको वाटर जो है वो पैसों में खरीदना पड़ता है. तो वो प्राइस को अट्रैक्ट करते हैं जहां पर रिसोर्सेज के क्या होते हैं, रिसोर्सेज स्केयर होते हैं, लिमिटेड होते हैं. सो दिस इज इक्वली एप्लीकेबल बोथ फॉर अ हाउसहोल्ड as well as for a country. A householder has a large number of wants concerning food, clothing, housing, health, education, etc. But his income is limited to satisfy all these wants. So similarly, a country also requires food, clothing, houses, means of irrigation, roads, railways, cars, buses, trucks, ships, aeroplanes, raw material, minerals, machines, tools and implements, factory buildings, defense equipment, education and health facilities, and many more things. But the resources required to produce these various goods and services are scarce in every country. So thus scarcity means limited availability of resources in relation to demand. Okay, and the second is B, resources can be put to alternative uses. Resources can be put to alternative uses. Okay, so when means are limited, they have alternative uses as well. So it implies that means can be applied and used for alternative purposes. For example, wood may be used for fuel, furniture, house construction, and many other purposes. Electricity may be used in houses, agriculture, industry, and in many other fields. So here also we face the problem of choice as to which of the means should be used for which type of work. Clear, student? Now the next topic is branches of economics. Yes, next topic is branches of economics. So the whole subject matter of economics can be classified into two main branches. First is microeconomics. Microeconomics. And second is macroeconomics. Macroeconomics and microeconomics. Okay, so अब हम इसी को डिस्कस करेंगे. So first is microeconomics. Microeconomics. So students, actually microeconomics is the study of the behavior of individual economic units. ठीक है, हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स का जो है उसके बिहेवियर की स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में.
So it is derived from from the Greek word mycos. Sorry. Micros. Okay. Which means small. Which means small. Okay. So this microeconomics refers to the study of refers to the study of scarcity and choice problems and choice problem facing an individual economic unit. Facing an individual economic unit. ओके सो स्टूडेंट क्या बताया अभी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स और इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल. ठीक है क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या है इसका माइक्रो का मीन्स क्या होता है स्मॉल तो इसीलिए यहाँ पर हम इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं. ठीक है सो जैसे अ कंज्यूमर अ फर्म अ इंडस्ट्री सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं सिर्फ एक इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस प्रॉब्लम फेसिंग एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट. ओके सो फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज और द चॉइस ऑफ प्रॉब्लम कंसर्निंग अ कंज्यूमर. ठीक है जो कि किससे एक कंज्यूमर से कंसर्न रखती है. अ कंज्यूमर अ प्रोड्यूसर अ फर्म और एन इंडस्ट्री एंड द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम और जैसे कि इंडिविजुअल इनकम की स्टडी और द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइस. कोई प्रोडक्ट है उसके प्राइस को डिटर्मिन करना एंड फैक्टर प्राइस निकालना वो किसके किसके अंदर आते हैं अंडर द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो टू बी मोर स्पेसिफिक the spending of income in the satisfaction of different wants by a consumer. आप ये भी कह सकते हैं कि एक कंज्यूमर जो है ना वो अपनी जब एक कंज्यूमर के द्वारा अपनी डिफरेंट वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो इनकम वो स्पेंड करता है. ठीक है एन एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज बाय अ प्रोड्यूसर. जैसे कि एक प्रोड्यूसर जिसके पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं जिससे उसे प्रोडक्शन करनी होती है तो उसको एलोकेट करना कि कैसे वो एलोकेट करे. ठीक है इसी तरीके से डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस बाय अ फर्म और एन इंडस्ट्री. एक फर्म है या एक इंडस्ट्री है वो अपने प्राइस डिटर्मिन करती है प्रोडक्ट के एंड इनकम ऑफ अ पर्सन फ्रॉम हिज ऑक्यूपेशन. ऐसे ही एक अपने ऑक्यूपेशन से जो पर्सन को इनकम मिलती है. सो these are the examples of microeconomics. So the central problem of microeconomics is the problem of allocation of resources or the problem of price determination. So hence it is termed as price theory. Here demand and supply are the main tools of analysis. ओके माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेन टूल्स होते हैं एनालिसिस के वो क्या 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 होते हैं डिमांड एंड सप्लाई. डियर स्टूडेंट्स सो टुमारो वी विल डिस्कस आवर मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके सेकंड जो ब्रांच है मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो टुडे टुमारो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.